My lovely students, welcome to Mathological. Goga Express of length 600 meters runs at 54 km per hour and goes from New Delhi to Meerut. ठीक है. It departs New Delhi station at 7 a.m. EMU trains from Meerut to New Delhi start after every 40 minutes with the first one starting at 6 a.m. At what time will Goga Express completely cross the last EMU it meets if it starts crossing the 6 a.m. EMU at 7:30 a.m.? All EMU trains run at 36 km per hour and are 400 meters long. तो दिस टाइम द क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट और क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोगा एक्सप्रेस तो अपनी चली रही है 600 मीटर्स की है और 54 किलोमीटर पर आवर से फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मेरठ. इट डिपार्ट्स न्यू दिल्ली एट 7 a.m. EMU trains from Meerut to New Delhi start after every 40 minutes and first one starts at 6 a.m. So at what time will Goga Express completely cross the last EMU it meets? If it starts crossing the 6 a.m. EMU at 7:30 a.m. and all EMU trains का information is given with them. So pause the video, try to solve it. ठीक है कि लास्ट EMU कौन सी होगी जिसको कि ये क्रॉस करेगी गोगा एक्सप्रेस. इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिसिंग है और क्या गिवन है. द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मेरठ इज मिसिंग. दैट इज नॉट गिवन. डायरेक्टली तो नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली गिवन है. इनडायरेक्टली कैसे गिवन है कि हमें स्पीड पता है गोगा एक्सप्रेस की भी और स्पीड पता है हमको EMUs की भी. और फर्स्ट EMU स्टार्ट्स एट 6 a.m. फ्रॉम मेरठ एंड दैट मीट्स गोगा एक्सप्रेस that starts crossing Goga Express at 7:30 a.m. So we have been given in the information of distance between New Delhi to Meerut indirectly. तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद में फिर आगे की कहानी को शुरू करेंगे. ठीक है. सो if this is New Delhi and this is Meerut, so at 7:30 it starts crossing, Goga Express starts crossing a 6 a.m. EMU. While Goa Express starts at 7 a.m. only. So from 7 a.m. to 7:30 a.m. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. The distance traveled from 7 a.m. to 7:30 a.m. that will be distance traveled in half an hour. Half an hour में distance traveled by Goga Express will be 27 km. And at the same time, the first EMU train that started at 6 a.m. that has taken 1.5 hour. ठीक है. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. ट्रैक तो डिफरेंट कर लें. ठीक है. तो 6 a.m. पे जो स्टार्ट हुई है EMU उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. तो 1 hour 30 minutes यानी कि 1.5 hour में डिस्टेंस ट्रैवल बाई द 6 a.m. EMU will be 54 kilometers. So total distance between New Delhi and Meerut, that distance will be 27 plus 54, 81 kilometers. Isn't it so? At 7:30 a.m. पे this is the location of the first EMU, the 6 a.m. EMU. क्या ये बात क्लियर है. और क्वेश्चन पूछ रहा है at what time will Goga Express completely cross the last EMU it meets if it starts crossing the 6 a.m. EMU at 7:30. Fine. तो फर्स्ट EMU जिसको ये क्रॉस कर रही है Goga Express, that is 6 a.m. EMU. And EMUs start after every 40 minutes. तो सेकंड EMU कब स्टार्ट करेगी. 6:40 a.m. पे. The third one will start at 7:20 a.m. The fourth one will start at 8 a.m. The fifth one will start at 8:40 a.m. Now, since Goga Express का location हमारा at 7:30 a.m. is this location and the distance remaining to be traveled is 54 kilometers. तो अगर स्पीड 54 किलोमीटर पर आए डेफिनेटली आफ्टर 1 hour गोगा एक्सप्रेस विल रीच मेरठ. तो गोगा एक्सप्रेस मेरठ कब पहुंचेगी. मेरठ पहुंच जाएगी 8:30 a.m. पे. एट 8:30 a.m. गोगा एक्सप्रेस विल रीच मेरठ. इजंट इट सो. तो जो भी EMU हमारा लास्ट क्रॉस करेगा गोगा एक्सप्रेस, दैट विल बी एन EMU दैट स्टार्टेड बिफोर 8:30. ये बात तो क्लियर होना चाहिए. 8:30 से पहले स्टार्ट होने वाली EMU होगी जो भी लास्ट EMU होगी. और डेफिनेटली सबसे आखिरी EMU जो कि 8:30 से पहले स्टार्ट हुई यानी कि दैट लास्ट EMU विल बी द 8 a.m. EMU. क्या ये बात क्लियर है. तो डेफिनेटली 8:40 वाली EMU को तो नहीं क्रॉस कर पाएगी बिकॉज वो स्टार्ट ही होगी इसके फिनिश होने के बाद में, इसका पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में. तो 8 a.m. EMU इज द लास्ट EMU दैट गोगा एक्सप्रेस विल बी क्रॉसिंग.
तो हम ये देख लें कि 8 AM पे लोकेशन क्या होगा। 8 AM पे गोगा एक्सप्रेस की लोकेशन क्या होगी, गोगा एक्सप्रेस की लोकेशन क्या होगी। 7:30 पे इट इज 54 किलोमीटर अवे, तो 8 AM पे इट विल बी 27 किलोमीटर अवे। गोगा एक्सप्रेस विल बी 27 किलोमीटर अवे एट 8 AM। और 8 AM पे ये ईएमयू जस्ट स्टार्ट किया रहेगा 8 AM पे, इजंट इट सो? तो डिस्टेंस रिमेनिंग है 27 किलोमीटर, गोगा एक्सप्रेस की स्पीड है 54 और ईएमयू की स्पीड है 36। तो टाइम टेकन आफ्टर 8 AM विल बी distance that needs to be traveled, that is 27 divided by relative speed, that is 54 plus 36, यानी कि 27 by 90, तो टाइम विल बी 3/10 आवर विच इज 18 मिनट्स। 3/10 आवर है तो 3/10 इंटू 60, 18 मिनट्स के बाद में द ट्रेन विल स्टार्ट क्रॉसिंग ईच अदर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीटली क्रॉस कब करेगी, एट वॉट टाइम विल गोगा एक्सप्रेस कंप्लीटली क्रॉस द लास्ट ईएमयू। तो क्रॉसिंग स्टार्ट होगा हमारा 8:18 AM पे, ठीक है। तो क्रॉसिंग स्टार्ट होगा 8:18 AM पे। दिस इज क्रॉसिंग स्टार्ट टाइम, स्टार्ट क्रॉसिंग, स्टार्ट क्रॉसिंग। और फिनिश कब होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, जब कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी। फिनिश कब होगा, डिस्टेंस है हमारी 600 प्लस 400, टोटल डिस्टेंस दो ट्रेन के मिला के है 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर्स दैट डिवाइडेड बाई 90 यानी कि 25, 40 सेकेंड्स में कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी। तो कंप्लीट होगा क्रॉसिंग हमारा 8:18:40 AM पे। दिस इज द टाइम व्हेन बोथ द ट्रेन्स विल कंप्लीट क्रॉसिंग ईच अदर। क्या है, बात क्लियर है? ठीक है। सो 8:18:40 AM दैट इज द टाइम व्हेन द ट्रेन्स विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कंप्लीट्स क्रॉसिंग। तो दिस विल बी द आंसर 8:18:40 AM। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब बाकी ट्रेन के लिए भी सिमिलरली निकाल लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन का हमें पता है 7:30 पे क्रॉस करना स्टार्ट करती है 6 AM वाली का, और बाकी ट्रेन के लिए भी सिमिलरली निकाल लेते हैं, आइडिया लग जाएगा, उससे और थोड़ा सा चीज़ें बेटर होंगी और क्लैरिटी आएगी। तो फ्रेश पेज पे करते हैं। देखो 7:30 पे डिस्टेंस था 54 किलोमीटर बिटवीन गोगा एक्सप्रेस एंड मेरठ। एंड 7:30 पे गोगा एक्सप्रेस स्टार्ट्स क्रॉसिंग द फर्स्ट ईएमयू। फाइन। तो फर्स्ट ईएमयू है हमारा 6 AM का, सेकेंड ईएमयू है 6:40, थर्ड है 7:20 और फोर्थ है 8 AM का। 6 AM वाली ईएमयू को स्टार्ट करती है क्रॉसिंग, स्टार्ट्स क्रॉसिंग, और सेकेंड टाइम अपने लिखते हैं कंप्लीट्स क्रॉसिंग। हालांकि दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जब भी स्टार्ट करेगी उसके बाद 40 सेकंड्स का ही टाइम लगने वाला है। तो 6 AM वाली को स्टार्ट करती है क्रॉस करना 7:30 AM पे, और फिर क्रॉसिंग कंप्लीट करने में टाइम लगेगा 40 सेकंड्स का, तो टाइम होगा 7:30:40 AM व्हेन इट कंप्लीट्स द क्रॉसिंग। 6:40 वाली को कब स्टार्ट करेगी, अब देखो यहाँ पे चीज समझना है हमें। 7:30 AM पे अगर हमारा 6 AM वाली ईएमयू से क्रॉस कर रही है गोगा एक्सप्रेस, तो नेक्स्ट जो ईएमयू है वो हमारा 40 मिनट्स के बाद निकलेगा, क्योंकि हर 40 मिनट्स के बाद में ईएमयूज निकल रहा है। तो इजंट इट सो? तो जो नेक्स्ट ईएमयू है वो हमारा जस्ट 40 मिनट्स पीछे होगा, 40 मिनट्स पीछे होगा। तो अगर हमारा 7:30 AM पे दिस इज द लोकेशन ऑफ द 6 AM ईएमयू, तो जो अगला वाला ईएमयू है वो कितना पीछे होगा, 40 मिनट्स की डिस्टेंस पीछे होगा। और 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कि ईएमयू, 40 मिनट्स यानी कि 2/3 आवर्स, तो 2/3 इंटू 36 विच इज 24 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 6 AM वाला ईएमयू एंड 6:40 वाला ईएमयू। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। सो यही डिस्टेंस हमारा होगा हमारा 6 AM ईएमयू में और 6:40 वाला ईएमयू में। बट द पॉइंट इज कि जैसे ही 6 AM वाला ईएमयू को क्रॉस करेगी गोगा एक्सप्रेस, यानी कि अब स्टार्ट कर दिया है, इसके तुरंत बाद इसके बाद में अब हम रिलेटिव स्पीड चेक करेंगे। अगर मैं सेकंड वाली ईएमयू से चेक करना है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा हमारा 54 से गोगा एक्सप्रेस अपनी जा रही है फॉरवर्ड्स एक डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है हमारी 36 से द सेकेंड ईएमयू। ठीक है। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस 24 किलोमीटर डिस्टेंस बाई बोथ द ट्रेन्स विल बी 24 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 36 विच इज 24/90 आवर्स में। तो ये वैल्यू आएगा विच विल बी 8/30, और मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दोगे तो 16 मिनट्स का टाइम लगेगा। आफ्टर 16 मिनट्स इट विल क्रॉस द सेकेंड ईएमयू।
16 मिनट्स के बाद में सेकंड ईएमयू क्रॉस करेगा, विच एम्प्लाइज की 40 मिनट्स के बाद में सेकंड ईएमयू निकला है, ठीक है, और 40 मिनट्स की डिस्टेंस पीछे था, 40 मिनट्स डिस्टेंस बिहाइंड था, और वो 40 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने में दोनों ट्रेन को, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, तो 16 मिनट्स का टाइम लगा, यानी कि नेक्स्ट ईएमयू को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा 7:30 + 16 7:46 AM पे गोगा एक्सप्रेस क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, और वो फिनिश हो जाएगा 7:46 AM पे। क्या ये बात क्लियर है? अगेन जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईएमयू है वो अगेन फिर 40 मिनट्स के ही गैप पे है, तो अगेन 16 मिनट्स का ही टाइम लगेगा, तो दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस 16 मिनट्स ऐड कर दोगे 7:52 AM पे इट विल स्टार्ट क्रॉसिंग, और 7:52:40 AM पे दिस विल कंप्लीट क्रॉसिंग। और जो 8 AM की ईएमयू है, जो लास्ट ईएमयू है जिसको कि गोगा एक्सप्रेस क्रॉस करेगी, दैट विल अगेन बी आफ्टर 16 मोर मिनट्स। तो 7:52 + 16, एक सेकंड, यहाँ 7:52 गलत लिखा है, 16 ऐड करके आएगा 8:02 8:02। ठीक है, और 8:02 में फिर 16 ऐड किया, तो 8:18 AM पे इट विल बी क्रॉसिंग द लास्ट ईएमयू ट्रेन इट विल बी मीटिंग, और इट विल कंप्लीट क्रॉसिंग एट 8:18:40 AM। So this is our structure for all the EMU trains that Goga Express will be crossing. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई बिलीव क्वेश्चन में मजा आया होगा, दोनों ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए दोनों ही समझ में आएंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। इतना ही रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।